Good evening. Today we will take up a very important topic in economics, that is national income measurement. We are going to talk about what exactly is national income, what are the various concepts behind national income, what is their utility, how is it measured, okay? And we'll discuss a lot of ancillary issues relating to that, including the concept of value added and what is this concept of gross value added, okay? Of course, there are a few critical terms like subsidies. Whenever those terms come up, we'll try to look at an explanation of what those terms mean also, right? These terms which we'll be using today, you just need to note them down because they'll be discussed in detail when we go to the lecture on basic concepts in economics, where we'll be talking about the budget, etc., etc. Right? So, national income, first of all, why do we need to measure national income? Earlier, when we had village societies and each village was an independent economic unit, we did not need this measure. But today we are living in the concept, we are living in a society where the concept of a nation exists, right? So, we need something to tell us what is the amount of aggregate economic activity in that particular region, geographical region. And that is when the concept of national income arose. Secondly, there is this aspect of being a globalized economy wherein the national income of one country needs to be compared with the national income of the other country. जब हम बोलते हैं that India has overtaken Britain in terms of GDP, then we are comparing, right? From where has this comparison come? Of course, by calculating in a certain way. Now in India, of course, national income has a lot of uses also. One of the most important uses of national income is in measuring, having an idea about the employment generation. Okay, national income plays a very important role in that. So overall, the national income of a country, and it's also a representative of how much the country has progressed. Now, whenever we are measuring national income on a global scale, we are talking about GDP. We are talking about the gross domestic product. Okay. Now, gross domestic product is basically the total value of goods produced and services rendered in the economy. We'll come to that. Now, the problem is, if you talk about social welfare, GDP may not be a very precise measure because though the GDP may be high, there might be a lot of economic disparity in the nation. So higher GDP does not necessarily mean that all the people are doing better. No, it does not mean that. What it means is overall as an economy, the country is doing good if the GDP growth rate is good. Okay. Now today in economics, there is a huge discussion on this issue, economic growth versus economic development. For a long time, it was assumed that if the economic grows, human development will automatically happen. Okay. But over a period of time, many people realized, economists realized that this is actually not happening. And they tried to find out reasons for that. Okay. And that is when and for 40, 50, 60 years, economists talked about what is called the trickle down effect. Now, what was the trickle down effect? If you look at any societal structure, every society is structured like this. Okay, here you have the rich, you have the middle classes, and you have the lower classes.
the trickle down effect theory says that whenever economic liberalization happens, whenever economic growth happens, this class is benefited the first, and the benefits slowly trickle down to the bottom sections of the society. This theory was called the trickle down effect, that benefits of economic growth slowly trickle down to the lowest common denominator. बहुत सालों तक ये थियरी को ही propound कर दिया गया, बट एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जहां कंट्रीज की जीडीपी बढ़ रही थी और गरीबों की तादाद भी बढ़ रही थी, गरीबों की संख्या भी बढ़ रही थी. तो ऐसा क्यों हुआ? देन गवर्नमेंट्स रियलाइज्ड, एनालिस्ट रियलाइज्ड, दिस डज नॉट एंश्योर दिस, right? Just because there is an economic growth, that's not a guarantee that there will be human development. No. You have to channelize the resources of the growth properly so that human development can happen. Okay. Today, economic growth is measured in terms of GDP and human development is measured in terms of HDI, जिसमें जीडीपी का एक बहुत छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा जीडीपी का डेरिवेटिव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड होता है. ओके, दैट इज जीडीपी पर कैपिटा, दैट इज द जीडीपी ऑफ द टोटल नेशन डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट नेशन. तो दैट इज जीडीपी पर कैपिटा. तो ये एक डेरिवेटिव जो है जीडीपी का, that is used in calculating human development index. Human development index is a different topic altogether. We'll come to it later. तो इस तरह से जीडीपी के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, राइट? तो बिफोर वी गेट डाउन टू द टेक्निकल स्टफ, छोटे से 2 पैराग्राफ आप लिख लीजिए. नेशनल इनकम is a vital tool. National income is a vital tool to assess the standard of living, and welfare of people in a society, in an economy. National income measurement is a vital tool to assess the standard of living, and welfare of people, assess the standard of living and welfare of people in an economy. However, the prosperity of the society as a whole, may not translate into prosperity of individuals. The prosperity of society as a whole may not translate into prosperity of individuals due to various factors. Okay, various factors can be corruption, parallel economy, which is also called the black economy, and so on and so forth. ब्लैक इकोनॉमी पे कुछ बोलूंगा नहीं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया है आजकल. अगला पॉइंट लिखिए. The Great Depression of 1929 showed how one economy can impact the other. The Great Depression of 1929 showed how one economy can impact the other. A need was felt to derive techniques
a need was felt to derive techniques to measure the aggregate economic activity of a nation. To measure aggregate economic activity of a nation. This led to the development of GDP and other concepts. This led to the development of GDP and other concepts. अब जीडीपी की बेसिक डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम इस डेफिनेशन के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी is the market value of all goods produced, the market value of all goods produced and services rendered, all market value of all goods produced and services rendered in the economy within a given time period. ब्रैकेट में लिखिए यूजुअली 1 year. ओके, अब इसके कुछ आप आंतरिक चीजें समझिए. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्यू इंटरनल थिंग्स अबाउट जीडीपी. There are basically 3 sectors in any economy. Okay, you have agriculture, industry and the service sector, IT etc. ठीक है, हर एक सेक्टर का जो भी मार्केट वैल्यू हो उसका आप आउटपुट निकालिए. सपोज इतना आउटपुट है. ओके, आउटपुट आप कैसे निकालेंगे? एग्रीकल्चर पे तो टैक्स लगता नहीं है, हाँ, लेकिन एक फॉर्म होता है जो गांव के लोकल के पास होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उसके पास लिखा होता है कौन से खेत में कितना आउटपुट आया. वो आप देख लीजिए. आपकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वो आपकी बैलेंस शीट्स वगैरह फाइल करते हैं, उसमें उनका टर्नओवर दिख जाएगा, वो देख लीजिए. सर्विस सेक्टर भी बैलेंस शीट्स फाइल करते हैं, टर्नओवर मिल जाएगा, देख लीजिए. इनको आप जोड़िए. दिस इज योर जीडीपी. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. ओके, अब इसको हम नंबर्स में लेते हैं. सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करते हैं. ओके, सपोज एक पर्टिकुलर साल में 2000 ले लीजिए. एक पर्टिकुलर साल में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए. ओके, और उनकी प्राइस थी 100 रुपीज. ज्यादा जीरो हो जाएंगे तो हम 1000 यूनिट्स ही लेते हैं. 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और उनकी प्राइस थी, ठीक है, तो उस साल का जीडीपी हो गया 1 लाख. ये हम ईयर 2000 की बात कर रहे हैं. ईयर, आउटपुट, प्राइस, जीडीपी. ओके, ये एग्जाम्पल से हम एक एक लेयर एक्सप्लोर करते जाएंगे, एक एक लेयर को हटाते जाएंगे. आपने बोला कि 2001 में जीडीपी बढ़ के 1,10,000 हो गया. जीडीपी बढ़ के 1,10,000 हो गया. तो यहां
ग्रोथ आया 10% और सब इकोनॉमिस्ट्स खुश हो गए। लेकिन हकीकत ये थी कि इन्फ्लेशन था 10%, तो जो चीज 100 की थी वो इस साल 110 में मिल रही है। हमने प्रोडक्शन उतना ही किया, राइट? सो एक्चुअली इज देयर अ ग्रोथ? नो, you produced 1000 units in 2000, in 2001 also you are producing 1000 units only, so actually there is no growth. Okay, अब suppose you have actually produced 1100 units and the price is the same. Okay, now you can say that there is a growth. Why? Because the productive capability of the country as a whole has gone up. Okay, suppose both happen. You have produced 1100, things cost this much. So now your GDP would be 1,21,000. Okay, right. Here the growth rate is 21%. Clear? And here the growth rate is 10%. Okay, right. This is called nominal GDP or GDP at current prices. GDP at current prices. Okay, क्यों? क्योंकि ये GDP मैंने 110 की प्राइस लेवल पे कैलकुलेट किया है. I have calculated this GDP at 110, at a price level of 110. So this would be called GDP at current prices. Okay. If I calculate 2001's GDP as 1100 units into 100, okay, which gives me 1,10,000, 1,10,000. Okay, now if I compare it with this, the growth rate is 10%. Are we clear? Okay, this is called the real GDP or GDP at constant prices. Why am I saying constant prices? Because I have taken the prices of 2000 only while calculating 2001's GDP. याद रखिए, इंडिया में जो GDP CSO कैलकुलेट करती है, GDP at constant prices, उसमें it considers the price of the year 2011. 2011 में वो चीज का मार्केट वैल्यू क्या था, उसी के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है. Are we clear? ठीक है. So this is nominal GDP, that is GDP at current prices, and this is real GDP, that is GDP at constant prices. We are clear on this? Absolutely clear? Okay. अब इसका एक और implication हम समझते हैं. इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें बहुत गड़बड़ है. सबसे पहली चीज, हम GDP देख क्यों रहे हैं? यहां से हम देखते हैं कि
इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन इक्वल्स 100 यूनिट्स, बराबर है। That is why the production of a nation is considered. It has some implications on the employment and unemployment situation. What implications? ये पूरा मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, उसके बाद हम टेक्निकली जब सब लिखेंगे फॉर्मूले तो हम ये सब चीज रिवाइज करेंगे। ओके, अभी तो मैं 3 मेथड्स ऑफ जीडीपी कंप्यूटेशन पे आया नहीं हूं, उसके लिए समय है, रुक जाइए। What are the implications of this growth rate in terms of employment? It's very simple. The assumption is if you needed 100 people to manufacture 1000 units, now you are manufacturing 1100 units, so you must be needing 110 people, right? That means आपके देश का प्रोडक्शन अगर बढ़ा है, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला है, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला है, राइट? तो दैट इज व्हाई दिस इज लुक्ड एट। ओके, ये समझ गया हाउ जीडीपी इंपैक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। ओके, ठीक है। अब इसका एक और पर्सपेक्टिव हम समझते हैं। ओवरऑल दिस इज व्हाट इट इज। अब इसमें एक और पर्सपेक्टिव जिसकी मैं बात कर रहा था या करने वाला हूं, ये जो प्रोडक्ट है, ओके, इट हैज गॉन थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे पेट्रोल, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। ओके, क्रूड ऑयल से शुरू होता है, ओके, फिर रिफाइनिंग होती है, फिर मार्केटिंग कॉस्ट होती, मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, तो जाके फाइनली कंज्यूमर आता है। ठीक है, ये 4 स्टेजेस आप पकड़ लीजिए। दिस सेल्स टू दिस एंटिटी, ओके, दिस एंटिटी सेल्स टू दिस एंटिटी and this entity sells to this entity। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूं कि ये 50 है, ओके, ये इसको 70 में बेच रहा है, ठीक है, ये इसको 90 में बेच रहा है और ये इसको 100 में बेच रहा है। ठीक है, अब मैं जीडीपी जब कैलकुलेट कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड, सब मैं अब जीडीपी जब कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं क्रूड ऑयल कंपनी का टर्नओवर पकड़ता हूं 50, सॉरी, क्रूड ऑयल कंपनी का टर्नओवर होगा 70, क्योंकि क्रूड ऑयल कंपनी ने रिफाइनिंग कंपनी को 70 में बेचा है। ठीक है, रिफाइनिंग कंपनी का टर्नओवर होगा 90 और मार्केटिंग कंपनी का टर्नओवर होगा 100, बराबर है। तो ये कितना हो गया जीडीपी? 90 + 70 160 + 100 260। क्या ये कैलकुलेशन सही है? जी नहीं, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये 70 रुपए आपकी जीडीपी में 3 बार आ चुके हैं। एक बार जब आपने क्रूड ऑयल कंपनी का टर्नओवर पकड़ा, रिफाइनिंग कंपनी ने पूरे 90 का वैल्यू ऐड किया क्या? नहीं, रिफाइनिंग कंपनी ने
₹70 का वैल्यू तो वैसे के वैसे लिया था जो उस कंपनी, क्रूड ऑयल कंपनी के टर्नओवर में, जीडीपी में आ चुका है। गॉट द आइडिया? ये ₹90 जो है आपने जीडीपी के कैलकुलेशन में 2 बार ले लिया है, तो आपका जीडीपी का फिगर जो है वो बहुत भयानक इन्फ्लेटेड है अगर आपने ऐसा कैलकुलेट किया तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? ये कंपनी ने वैल्यू ऐड कितना किया? ₹20। ओके, ये कंपनी ने, रिफाइनिंग कंपनी ने वैल्यू कितना ऐड किया? ₹20। और मार्केटिंग कंपनी ने वैल्यू ऐड कितना किया? ₹10। बराबर है? तो ये एक्चुअली आपका जीडीपी है 50, 260 नहीं। देखो कितना फर्क पड़ा है, 5 टाइम्स हो गया था ये, 5 टाइम्स। क्लियर? ओके, यही आप एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 100 में इनपुट कॉस्ट ऑफ माइनस कर दीजिए, बचा 50। या ये 260 में से आपके इनपुट कॉस्ट कितने हैं? 90 + 70, 160 + 50। इसमें से आप टोटल इनपुट कॉस्ट 210 माइनस कर दीजिए, इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट जिसको बोलते हैं, बट हाउ मच इज लेफ्ट? 50। सेम कैलकुलेशन आया है, इट्स द सेम कैलकुलेशन। Okay, so when we simply calculate the market value of goods produced and services rendered, the GDP figure is inflated. Okay, to prevent that, the government uses the concept of gross value added. What is the concept? Gross value added. Value added at each stage of the production process is taken into account. ये लेवल तक ठीक है? अब एक और चीज है इसमें, खैर इतना ज्यादा डेप्थ में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हमको लिखनी है, आप वो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे। लिखिए 3 मेथड्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। मैंने अभी आपको बैकग्राउंड दे दिया है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और ग्रॉस वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो सबसे पहले लिखिए एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें पहला पॉइंट। अब देखिए, कोई भी इकोनॉमी में अगर कोई बेच रहा है तो कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा। ओके, इफ somebody is receiving money, that means somebody is giving money. इसलिए आइडियली इन एन इकोनॉमी टोटल इनकम should equal total expenditure. Total income should equal total expenditure. Okay, तो लिखिए, this method follows the logic that in an economy, total income equals total expenditure. Total income equals total expenditure.
National income is calculated by adding all expenditure made on goods and services during the year. Sorry, by adding up all expenditure made on first purchase of goods and services during the year. अब ये फर्स्ट परचेज का क्या कॉन्सेप्ट है? ओके, 2015 में एक बंदा था ए, जिसने एक कार खरीदी 15 लाख की. ओके, इन द ईयर 2015, when GDP was calculated, this he has purchased from the showroom, from the company. So in 2015, when the GDP was calculated, this was included. Okay, now this person drives the car for say 4 or 5 years, and in 2020, A sells the car to B. Okay, at 5 lakhs. When you calculate GDP for the year 2020, this will not be included. Why? Is it the first purchase? No. So will it be included? No. और आप लॉजिकली सोचिए, ये 5 लाख रुपए में कोई प्रोडक्टिव एबिलिटी बढ़ी है क्या इकोनॉमी की? नहीं. It's just a transfer of goods from one person to the other. There is no impact of this transaction on the production capabilities of an economy. Okay, so that is why आपको लिखाया है first purchase, because productive capability is added only in the first purchase. Okay, आगे लिखिए. Goods can be consumer goods or capital goods. Goods can be consumer goods or capital goods. And the expenditure can be made, by private individuals or the government sector. And the expenditure can be made by private individuals or the government sector. एक चार्ट बना लीजिए अभी, एक टेबल, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. कौन से एक्सपेंडिचर्स को काउंट किया जाता है व्हेन यू कैलकुलेट जीडीपी बाय द एक्सपेंडिचर मेथड. सबसे पहला है प्राइवेट. ऐसा ये पूरा चार्ट बनाइए, ऐसा का ऐसा. प्राइवेट कंजम्पशन expenditure, which is denoted by C. ये क्या है? इसके नीचे लिख लीजिए आप. Expenditure on consumer goods and services. Expenditure on consumer goods and services by individuals and households. Expenditure on consumer goods and services by individuals
एंड हाउस होल्ड्स। जैसा मैंने बताया यहाँ पे 15 लाख की कार खरीदी, ओके, वो आ जाएगा सी में। या आप गेहूं चावल वगैरह वगैरह खरीदते हैं, वो आ जाएगा सी में। सेकंड, गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन expenditure which is denoted by G. Government final consumption expenditure which is denoted by G. ये क्या है, लिख लीजिए। Government's expenditure on goods and services. Government also needs goods and services for its survival. बहुत सारी चीजें लगती हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इतने सारे एम्प्लॉइज, उनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं एंड सो ऑन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और आय। ये क्या है, लिख लीजिए। एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी और शेयर्स, ओके, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी और शेयर्स। बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी का जो एक्सपेंडिचर है, ओके, वो एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू सस्टेन ओवर 10 ईयर्स। कोई आप मशीनरी खरीदते हो, वो सिर्फ 1 साल थोड़ी चलती है, वो चलेगी 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो उस पे जो एक्सपेंडिचर और मशीनरी यूज करके यू विल मैन्युफैक्चर गुड्स। सो व्हाट आर एक्सपेंडिचर यू डू ऑन that comes under gross domestic investment, not under private consumption. Clear? Okay. तो जो कंपनीज, अब आप सोचने की कोशिश कीजिए, एक फैक्ट्री है, टेक्सटाइल मिल, which produces a fabric called Raymond's. ठीक है, तो रेमंड्स का जो आउटपुट है वो यहां आ जाएगा, ओके। जो मशीनरी यूज करके बनाई गई है, वो मशीनरी भी कोई कंपनी ने बनाई होगी, वो कंपनी का आउटपुट यहां आ जाएगा। गॉट द आइडिया? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसा गेहूं हो गया, चावल हो गया, ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गिनने के बजाय आप ये गिनिए कि लोग कितना परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे उसमें इन्वेंटरीज क्या, तो इन्वेंटरीज बिल्डअप करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें कवर हो जाता है, इसमें कवर हो जाता है। क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेहूं और चावल अगर खरीदती है तो सरकार के बिहाफ पे खरीदती है ना, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो आ जाएगा। आर वी क्लियर? तो जस्ट बाय मेजरिंग द एक्सपेंडिचर्स यू आर मेजरिंग एवरीथिंग, ओके। अब इसमें और एक टर्म है, नेट एक्सपोर्ट ऑब्लिक इंपोर्ट। यह है x माइनस m। इसमें x का मीनिंग लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरेनर्स ऑन इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरेनर्स ऑन इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक्सपोर्ट्स,
ठीक है, और M में लिखिए एक्सपेंडिचर मेड बाय इंडियंस, एक्सपेंडिचर मेड बाय इंडियंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेस, expenditure made by Indians on foreign goods and services, that is imports. अब याद रखिए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, रिमेंबर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, ओके. So whatever money has been spent by individuals, whatever money has been spent by individuals, okay, it must be basically on two types of goods. What are the two types of goods? Produced in India and produced outside India. अब टेल मी वन थिंग, ये तो आपके इंपोर्ट्स हुए ना, राइट? इज दिस एन इंडिकेशन ऑफ एडिशन टू द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी? नो, क्योंकि ये गुड्स बने बाहर ही है ना, ये गुड्स बने बाहर हैं. So does this represent addition to productive capabilities of our economy? No. So it is excluded. Right? Look at the reverse way. When I talk about total production of any company, the consumption is again in two parts. Right? First is domestic consumption. यहां domestic consumption का मतलब मैं ले रहा हूं consumed, purchased by people in this country only. Okay? And the second is consumed outside the country. बराबर है. और प्रोडक्शन कहां हुआ? प्रोडक्शन यही हुआ, इंडिया में ही हुआ. सपोज हम इंडिया की बात कर रहे हैं, विच मीन्स this amount of domestic production consumption is already included in this, okay, but consumed outside the country, is it included in this? No. But is it an indication of addition to the productive capabilities of the economy? Yes. That is why this is added. Are we very clear on this? Which means ये Infosys जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ओके, दे आर एडेड. और आप जो बाहर से चीजें मंगाते हैं, दे आर सब्ट्रैक्टेड. तो ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके यू कम टू द एक्चुअल प्रोडक्शन एस्पेक्ट. ओके, तो ये सारी चीजें कंप्यूट करने के बाद कि चार्ट आप आई होप बनाते चल रहे हो. ओके, ये है x, ठीक है, और ये है c, और ये कहां पर है? या तो c में है, या g में है, या i में है. क्लियर? So GDP is calculated as addition of all this, that is C plus G plus I plus X minus M. Okay, this is the expenditure method
फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। आप जब भी नेशनल इनकम या जीडीपी खासकर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, रिमेंबर द की फैक्टर इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की आप बात कर रहे हैं वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी। ओके, ठीक, जीएनपी पे जाएंगे, पेशेंस, तो ये लिख लिया आपने। ओके, आगे लिखिए, द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, एक्सपेंडिचर मेथड में ही लिख रहे हैं आप, द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड while calculating GDP by expenditure method. The following should be avoided while calculating GDP by expenditure method. Number 1, expenditure made on second hand goods मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सपेंडिचर मेड ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड, एक्सपेंडिचर मेड ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिखे पेंशन एक्सेट्रा। एक्सपेंडिचर मेड ऑन ट्रांसफर पेमेंट, ब्रैकेट में लिखे पेंशन एक्सेट्रा। थर्ड, एक्सपेंडिचर मेड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तीनों चीजें। इंटरमीडिएट गुड्स हमने वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया था। ओके, सो दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड। आर वी क्लियर ऑन दिस? एब्सोल्युटली क्लियर, नो प्रॉब्लम? ओके, देन राइट डाउन द सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड। This method approaches national income from the distribution side. This method approaches national income from the distribution side. It is added by summing up incomes of all individuals in the country. एक्सपेंडिचर का हमने चार्ट देखा, क्या क्या हो सकते हैं। अब हम इनकम्स का चार्ट देखते हैं। ओके, आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरा होगा, ओके, इनकम टैक्स रिटर्न में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं ये? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रफली यही 5 हेड्स हैं, राइट। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में आपने प्रोडक्ट सेल हुआ उस पर क्या एक्सपेंडिचर हुआ वहां से कैलकुलेट करा। ओके, इसमें आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है उस तरह से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट बनने में जो एक्सपेंडिचर है वो जिनके लिए इनकम है उनकी इनकम आप कैलकुलेट करो। दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। दीज आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स क्या है? What are the factors of production? Men, money, machine and materials. ओके, फिलहाल आप मशीन एंड मटेरियल्स छोड़ दीजिए और मुझे बताइए कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो एक तो कैपिटल लगेगा, लोग लगेंगे,
और जगह लगेगी। ठीक है, मटेरियल्स वगैरह का अकाउंटिंग कैसा रहा उस पे हम आएंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें होती है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब सैलरीज एंड वेजेस, बिकॉज प्रोडक्ट के कॉस्ट में वो इंक्लूडेड होगा ही ना, कोई भी कंपनी लॉस पे थोड़ी बेचेगी, पूरे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बना के बेचेगी, तो वो इंक्लूडेड रहेगा ही। तो पहला है सैलरीज एंड वेजेस, ओके। दूसरा है रेंट, मतलब कंपनी ने कितना रेंट पे किया, लेकिन रिमेंबर आप इनकम लेवल पे, तो टोटल लोगों ने रेंट से कितनी इनकम डिराइव की है। इसमें कुछ एक्सक्लूजन है वो हम बाद में देखेंगे। लोगों ने रेंट पे कितनी इनकम डिराइव की है। रिमेंबर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का रेंट आपको नहीं पकड़ना है। आप ही हो और आप ही उस घर में रह रहे हो तो उसका रेंट आप नहीं पकड़ेंगे। रेंट प्लस अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज करी है तो कंपनी रॉयल्टी पे कर रही होगी, तो लोगों के हाथ में टोटल रॉयल्टी अमाउंट कितनी आई है। ठीक है। तीसरी चीज, लोगों की इंटरेस्ट पे इनकम कितनी हुई है। हाउ मच इज द इंटरेस्ट इनकम ऑफ द पीपल, बिकॉज पीपल indirectly, directly or indirectly, people provide the capital for industry. हमने पहले लेक्चर में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, उसमें ये फैक्टर पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट आया था। ओके, अल्टीमेटली पीपल आर द ओनर्स ऑफ मनी एंड द कॉर्पोरेट्स एंड द प्रोडक्शन गाइज दे आर द यूजर्स ऑफ मनी। तो अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट, और वो पीपल्स इंटरेस्ट इनकम में कंपनीज की वो कॉस्ट रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? सो इंटरेस्ट, एंड द फोर्थ इज प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स तीन तरीके से निकलती हैं। प्रॉफिट का लोगों की इनकम पर कैसा दिखता है, हाउ इज द इंपैक्ट ऑफ अ प्रॉफिट seen in incomes of people. It's seen in only a few circumstances, but one component is dividends, because a company pays dividends if and only if there's a profit. Okay, that means if somebody has a dividend income, that means the company is in profit. That's why this person has a dividend income, right? But the company does not spend the entire amount, entire profit, does not distribute the entire profit as dividend. Dividend के बाद भी एक छोटा हिस्सा रहता है, which is undistributed profits. Right? And then corporate income tax. ठीक है, इससे आप जज कर सकते हैं कि प्रॉफिट्स कितने हुए हैं, राइट? देन इन इंडिया, not in India, I mean not only in India, in many nations you have a lot of self-employed people. Very small scale, village industries, cottage industries, right? Who work in their home part time, making some artifacts, rural artifacts, and the remaining time they work somewhere else. तो इसमें आप एक कोई चीज निर्धारित नहीं कर सकते कि उसका इनकम सैलरी है या प्रॉफिट है। तो we'll say mixed income of self-employed.
मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, तो ये फिगर्स आपके पास एक बार आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, लिखिए स्टेप 1, the adding up of factor payments, the adding up, step 1, the adding up of factor payments, all these are called factor payments, by all enterprises in a sector. Step 1, adding up of factor payments of all enterprises in a sector. Second, the summing up of such payments of all sectors. पहले एक सेक्टर में 100 कंपनीज हैं, उनको ऐड कर लीजिए तो आपको एक सेक्टर का टोटल फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ऐसे 15 सेक्टर हैं तो भी 15 सेक्टर्स के ऐसे टोटल कॉस्ट ऐड कीजिए, आपको टोटल मिल जाएगा। The summing up of such payments by all industrial sectors. The summing up of such payments by all industrial sectors. This is NDP at factor cost. Net domestic product at factor cost. This plus factor income from abroad. This plus factor income from abroad gives you net national product at factor cost. Net national product at factor cost. लिखिए प्रिकॉशंस। रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड, सॉरी, बिकॉज अल्टीमेटली एक तरह का कंपनसेशन ही वो। रेंट ऑफ, पहले मैंने शुड नॉट भी बोला था, दैट इज रॉन्ग। रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। 2, prizes and lotteries not to be included. मतलब आप केबीसी में गए और आप 25 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जीत के आए, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। प्राइजेस एब्लिक लॉटरीज नॉट टू बी इंक्लूडेड। थर्ड, इलीगल मनी कैन नॉट बी इंक्लूडेड। अब आपकी कोई इनकम है जो आपने आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई नहीं, तो वो इंक्लूड होगी नहीं। फिर हमने जो एक एक्सपेंडिचर मेथड में क्वेश्चन लिया था वो इनकम मेथड में क्वेश्चन है। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स should not be included. Okay, so this is the expenditure method, income method for calculating your GDP. But before we end our discussion on the income method, one more thing. I've already, in the beginning we had discussed that it was the Central Statistical Organization which calculates all these figures for India. Okay, now when you take the CSO's income method, when you take the CSO's income method, in compensation, the NSO says it is salary plus employer's contribution to social security.
दैट मीन्स आपका पीएफ वगैरह जो एम्प्लॉयर की तरफ से पे होता है, ठीक है। आप जब when you talk about the income, salary income of people, employees contribution is included in that. Okay, the CSO adds employers contribution, and that is how CSO calculates compensation. Okay, second, instead of profit, the CSO uses the term mixed income plus operating surplus instead of interest and rent. Rent can be on land, rent can be on machinery, anything. It uses the term consumption of fixed assets. Of course, during the particular period. Okay, so this is CSO's income method of arriving at India's GDP. Okay, remember हम ये सेशन में सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। एक्चुअल फिगर्स क्या हैं, ये सब जो भी ईयर में आप यूपीएससी देने वाले हैं उस साल के एक्चुअल फिगर्स क्या हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, थर्ड, हमने दो मेथड देख लिए जीडीपी के, तीसरा मेथड लिख लीजिए प्रोडक्शन ऑब्लिक वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और the value addition method. Now let us try to understand what this method actually is. Let me take an example of any industry. As you all would be knowing, any economic activity starts with first use of natural resources. Okay, a value chain, there is in economics there is this concept of a value chain, that is the chain which leads to that product which starts from first use of natural resources and ends at reaching the hands of the final consumer. All the series of activities in this entire chain, this is known as the product chain, right? So let us say there is a particular value chain or a product chain in which there are four enterprises. We will call them A, B, C and D. Okay, and let us say D sells it to the final consumer. Okay, and A is the enterprise which uses the natural resources. So this would be the entire value chain of that particular product. Okay. Now when A is extracting whatever elements from nature, it can be iron ore, it can be anything, he obviously would incur a cost. Okay, and you add his profit, he would sell it to B, okay, at a certain rate. So suppose whatever A does, he sells it to B at 2 lakhs. B does further processing, adds his own, and B sells to C at 5 lakh. B sells to C at 5 lakh. C does further processing and C sells to D at 8 lakh. D buys the product in the, now remember, for D this is the raw material, for C
this is the raw material. For B, this is the raw material. You got the flow? Okay. So C procures the raw material, does some processes on it, incurs some labor cost, some machinery cost, profit element, etc., etc., and D sells it to the final consumer at 11 lakhs. Okay. Now, if I simply take the GDP as total value of goods produced and services rendered in the economy, my GDP would be 2 lakh plus 5, 7 plus 8, 15 plus 11, 26 lakhs. If I simply add up the value of output of every sector, it would be 26 lakhs. Lekin, remember, whenever we are calculating GDP, we are focusing on production का value कितना है. क्या production का value 26 लाख है? नहीं, because ये 5 लाख का जो value है, उसमें ये 2 लाख का value already included है ना, right? तो आपने एक्चुअली ये 2 लाख यहां एक बार ले लिया, यहां दूसरी बार, यहां तीसरी बार, यहां चौथी बार, आपने 2 लाख 4 बार लिया है. वैसे ही 5 लाख आपने 3 बार लिया होगा, एक बार यहां, एक बार यहां, और रहना कितनी बार चाहिए? 2 बार. समझ गया आपको? तो ये 26 lakhs की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है. So instead of that, let's take a look at what kind of value has been added. If I talk about value added, this enterprise, I admit it has added a value of 2 lakhs. But B, remember, value of output is 5 lakh, value of raw material is 2 lakh, so B actually has added a value of only 3 lakh. Okay, C also has added a value of only 3 lakh, and D also has added a value of only 3 lakh. So the value added is this. This is the total sale. We want the value added. Okay. So now let us see how much is this. 2 lakh plus 3 lakh plus 3 lakh plus 3 lakh, which is ultimately 11 lakh. ओके, तो देखा कितना ज्यादा एस्टिमेशन हुआ था. हमने 26 लाख एस्टिमेट किया था इफ वी जस्ट ऐड द क्वांटिटी दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, बट एक्चुअली द वैल्यू दैट हैज बीन एडेड इज ऑफ रुपीज 11 lakhs ओनली. ठीक है, इसका एक और तरीका है 11 lakhs पे पहुंचने का. ये टोटल वैल्यू आपने निकाल ली 26 lakhs. अब इसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर लीजिए. कॉस्ट कितना है? 2 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 8 lakhs, 7 प्लस 8 15. तो इसमें से आपने 15 lakhs अगर माइनस किए तो आ गया 11 lakh. आइदर यू कैलकुलेट द वैल्यू एडेड और you take the final value and subtract the value of intermediate goods. Both the methods are acceptable because ultimately both of them will lead to the same answer. Okay, this is called the product method or value added method of measuring the GDP of a country. Are we clear? पहले इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए. इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं. स्टेप 1 लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस. स्टेप 1, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary. Into primary, secondary and tertiary. ठीक है. Step 2, output classification into. Step 2 is
output classification into consumer goods, capital goods, goods produced by the government, and net exports. Okay, what is the distinction between consumer goods and capital goods? Let's try to understand. The soap which you use, बिजनेस में एक सेक्टर भी होता है जिसको हम बोलते हैं FMCG सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर. So what are consumer goods? Consumer goods, for example, would be the soap that you use, the hair oil that you use, the TV that you watch, the mobile handset that you would use. These are consumer goods, right? इसमें जिनका मूवमेंट बहुत फास्ट है, मे बी यू नीड देम वंस अ मंथ, अ न्यू वन वंस अ मंथ, दे आर कॉल्ड फास्ट मूविंग. अब मोबाइल तो आप हर महीने में एक शायद नहीं खरीदोगे, लेकिन साबुन तो लगेगा, टूथब्रश लगेगा, टूथपेस्ट लगेगा. दिस इज द FMCG सेक्टर. दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. बट the machinery that you have used, the machinery that the producers have used to manufacture these goods, the machinery that producers have used to manufacture these goods, they would be called capital goods. Okay, तो दोनों में ये फर्क होता है. Using capital goods, consumer goods are manufactured. Okay, so these are the 4 types of output. एंड स्टेप 3 तो मैंने आपको बता दिया है, हर एक का आपको वैल्यू एडेड मेजर करना है और उसके ऊपर से निकालना है. ओके, तो ये आपने जो कैलकुलेट किया है 11 लाख इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, आप इसी लिस्ट में आगे लिखते जाइए. दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस. Gross value added at basic price. This is not the market price. This is gross value. This is not considered as the market price क्योंकि इसमें कुछ distortions हैं. क्या distortions हैं? आप समझिए. एक कोई particular industry है, एक कोई particular industry है, which is manufacturing something on which it gets subsidies from the government. ओके, सपोज इट्स कॉस्ट, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये 2 लाख आया कहां से? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज कॉस्ट इज 10,000 बट द गवर्नमेंट इज गिविंग अ सब्सिडी ऑफ लेट अस से 2,000 रुपीज, 20%. ओके, तो इसमें से हम माइनस करेंगे सब्सिडी 2,000, तो अभी कॉस्ट आ गया 8,000. ओके, अब सपोज कॉस्ट आ गया 8,000, सपोज इस पे सरकार GST लगाती है 20%, तो इसमें ऐड हो जाएगा प्लस GST 20%, तो ये हो गया 1600, तो एक्चुअली आया 9,600. बराबर है, विच मीन्स बेसिक प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इक्वल्स मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस ये आया ना, मैं प्रॉफिट एलिमेंट फिलहाल एक्सक्लूड कर रहा हूं. ओके, सो बेसिक प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज मार्केट प्राइस, विच मीन्स GVA
एट बेसिक प्राइस, ये आप लिखते चले जाइए, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी गिव्स मी व्हाट, GVA एट मार्केट प्राइसेस। लेकिन करंट मार्केट प्राइसेस मतलब आज की कीमत कितनी है, राइट? इसमें बेस ईयर का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में समझा है, फिर से एक बार समझा देता हूं। जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त कभी भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपने एक्सक्लूड नहीं किया। व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, if you don't exclude the impact of inflation, your GDP figure would be distorted. स्टार्टिंग में हमने देखा था 10,000 यूनिट्स वाला एग्जाम्पल, ओके? तो जो जीवीए करंट प्राइस से मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हुआ है, यू हैव टू एडजस्ट इट फॉर द बेस ईयर। एग्जाम्पल समझिए, 2011 में 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए थे, फिर से मैंने मिस्टेक वही किया है, 1,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए थे, प्राइस था 100 रुपीज, आपका जीडीपी था 1 लाख, ठीक है? 2016 में फॉर एग्जाम्पल आपके 1500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं और प्राइस बढ़ के 150 हो गई है, ठीक है? तो आपका जीडीपी आया 2,25,000। 15 जा 225, ओके? ये आया 2,25,000। अब आप अगर रेट देखोगे तो 1,25,000 का ग्रोथ है 1 लाख में, मतलब डबल से ज्यादा हुआ है, डबल से ज्यादा हुआ है। लेकिन मैंने जैसे बोला था, while calculating GDP you have to see production, because that is the aspect, the production aspect of the GDP is the aspect which is linked to employment generation and so on and so forth. तो प्रोडक्शन एस्पेक्ट से तो 50% ही ग्रो हुआ है, क्लियर? सो आई विल से दिस इज करंट प्राइसेस। अब मैं कंपैरिजन थोड़ी कर सकता ना, आई कांट कंपेयर, सो व्हाट आई डू, आई टेक द आउटपुट ऑफ दिस ईयर and take the price of the base year. Let us say the base year is 2011, which is actually the base year now. Okay. Now, if I take this, my GDP comes out to 1,50,000, and I'll say this is the GDP at constant prices, which shows an increase of 50% from 1 lakh to 1,50,000. The productive capability of the country has also increased by 50% from 1,000 to 1,500. What implications does this have for our formula? GVA at current prices plus base, ये प्लस में मैथमेटिकल प्लस नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिए, प्लस बेस ईयर एडजस्टमेंट विल गिव मी द जीवीए एट कांस्टेंट प्राइसेस, will give me the GVA at constant prices. Are we clear? Okay. This in India is the official GDP.
This in India is the official GDP. Okay, and in India the base year has been considered as 2011-12. 2011-12 fiscal year में average prices जो थी उसी प्राइस पे अभी का GVA कैलकुलेट होता है, और GVA पे ओवरऑल हम मूव भी हुए थे 2005 में। उसके पहले हम एक अलग मेथड यूज करते थे जो अभी रेलेवेंट नहीं है। ओके, इसका एक और इंप्लीकेशन होता है व्हेन यू चेंज द बेस ईयर। ओके, अब 2011-12 के पहले हमारा बेस ईयर था 2004-5, तो 2014-15 तक की जीडीपी जो थी दैट वाज कैलकुलेटेड एट 2004-5 प्राइसेस। 2015-16 से जो जीडीपी आ रही है दैट इज कैलकुलेटेड एट 2011-12 प्राइसेस, राइट? सो देयर इज अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम हियर, and that statistical problem is the new set of GDP figures now cannot be compared with the old set of GDP figures. Are we clear? जो नया फिगर्स का जीडीपी का फिगर्स का आपका सेट आएगा, क्योंकि आपका बेस प्राइस ही अलग है, तो अगर आपने डायरेक्टली कंपेयर किया तो बहुत डिस्टॉर्शंस होंगे। ओके, तो क्या किया जाएगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में जीडीपी मेजर करती है वो 2011-12 का बेस ईयर पकड़ के जीडीपी रिकैलकुलेट करेगी। कौन से सालों का? पुराने सालों का। 10 साल का सपोज कंपैरिजन चाहिए तो 2004-5 से लेके 2014-15 तक का जो जीडीपी है दैट विल बी रिकैलकुलेटेड यूजिंग द बेस ईयर ऑफ 2011-12. ओके, दिस इज कॉल्ड बैक सीरीज डेटा. What is it called? बैक सीरीज डेटा. ओके, तो जो बैक सीरीज डेटा फिर पब्लिश होगी उसके लिए रिमेंबर बहुत सारे कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे अजम्पशंस इन्वॉल्व हैं। तो ये बैक सीरीज डेटा जब पब्लिश होगा तब एक्चुअली आप नए जीडीपी को पुराने जीडीपी से डायरेक्टली कंपेयर करके ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो जीडीपी मेजरमेंट अपने आप में भारत में एक बहुत 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 बड़ी चीज होती है, राइट? अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है, हमने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक करा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था whenever you talk about domestic product, okay, the key criteria is the geographical area irrespective of who's manufacturing, nationality of the person manufacturing. But when you talk about national product, the key criteria is the nationality of the person producing. Are we clear? ओके, तो ये सेंटेंस लिख लीजिए। व्हाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, द की क्राइटेरिया इज geographical region in which production is happening. The key criteria is the geographical region in which the production is happening. But when national product is calculated, the key criteria is the nationality of the entity producing.
द नेशनैलिटी ऑफ द एंटिटी प्रोड्यूसिंग। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या चीजें ऐड होंगी, क्या चीजें माइनस होंगी। आर वी क्लियर? नेट नेशनल प्रोडक्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या चीजें ऐड होंगी और क्या चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी, इसका एस्टिमेशन अब आप खुद बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। हम नेशनल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उस पर सवाल कम आते हैं। उसके बारे में बेसिक थियरी जो आपको मालूम होनी चाहिए वो आपके प्रिंटेड बुकलेट में रहेगी, आप वो पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ जाएगा। अगला हेडिंग अब दीजिए, नेशनल इनकम मेजरमेंट इन इंडिया। नेशनल इनकम मेजरमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में नेशनल इनकम मेजरमेंट कैसे होता है? अब इसके अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, सबसे पहले 1931 में किया गया था बाय एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड VRKV राव। पोस्ट इंडिपेंडेंस का आप लिख लीजिए, नेशनल इनकम कमिटी, द नेशनल इनकम कमिटी was appointed in 1949. The National Income Committee was appointed in 1949 and the first report was published in 1951. First report was published in 1951. The national income for 1948-49, the national income for 1948-49 मतलब पहला साल जब हमने एस्टिमेट करा था was rupees 8,710 crores, was rupees 8,710 crores, and the per capita income was rupees 225, and the per capita income was rupees 225. Since 1955, national income estimates are prepared by the CSO, Central Statistical Organization. ओके, अब ये एक चार्ट बना लीजिए। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम मेजरमेंट के लिए इकोनॉमी को 5 सेक्टर्स में डिवाइड करती है। ओके, ये 5 सेक्टर्स क्या क्या हैं? ये टेबल आप चार्ट आप बना लीजिए। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर इसलिए बोला गया है इसको बिकॉज दिस इज द सेक्टर विच कंसिस्ट ऑफ एंटरप्राइजेस who extract resources from nature. जो फर्स्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस करने वाली एंटरप्राइजेस जो हैं वो सारी प्राइमरी में आती हैं। तो इसमें क्या क्या है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, mining and quarrying। तो ये 4 सेक्टर्स मिला के हमारा प्राइमरी सेक्टर बनता है। देन यू हैव द सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। ओके, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
Then the third sector is transport, which includes communication, transport obviously, and trade. Obviously किराने की दुकान है, उन्होंने मैन्युफैक्चर थोड़ी किया है, डिपार्टमेंटल स्टोर से उन्होंने मैन्युफैक्चर थोड़ी किया है, वो सेक्टर अलग आ जाएगा ना, सेकेंडरी में थोड़ी आएगा. Then you have finance and real estate. याद रखिए, construction activity is in the secondary sector, but real estate trading is in the finance and real estate sector. सर्विस सेक्टर में मानती है उसको भारत सरकार. And the fourth is community and personal services. इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये एनालिसिस, ये डिस्टिंक्शन क्यों किया गया? रिमेंबर, फिर से वही चीज याद रखिए, हम प्रोडक्टिव एबिलिटीज की बात कर रहे हैं. प्रोडक्शन इंक्रीज, इधर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, इधर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है. ट्रेड में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा क्या? नहीं. कम्युनिकेशन में गुड्स को आप क्वांटिफाई कर सकते क्या? नहीं. गॉट आइडिया? तो ये अलग चीज हो जाएगी, इसलिए इसको अलग किया है. राइट. फिनेंस, इसको आप, कोई प्रोडक्ट है क्या, कोई गुड्स है क्या जिससे आप कैपेबिलिटी आप प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी गेज कर पाओगे? नहीं. और डिफेंस, क्योंकि वो बेसिकली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये सेक्टर में ये बेसिकली गवर्नमेंट है. दैट इज व्हाई द CSO हैज डिवाइडेड आवर सेक्टर्स इनटू 5. ओके. The CSO follows a mixed approach to national income measurement. The CSO follows a mixed approach to national income measurement. In some sectors, value added method is used. ये sectors कौन से आपको find out करना है. In some sectors, value added method is used, whereas in some sectors, a mixture of income and expenditure method is used. Whereas in some sectors, a mixture of income and expenditure method is used. आखिरी पॉइंट इसमें लिख लीजिए. इन 2015 the base year was changed. In 2015 the base year was changed. पहला पॉइंट लिखिए, the base year was changed from 2004-5 to 11-12. GDP was to be estimated in terms of market price. GDP was to be estimated in terms of market price. Third, GVA from different sectors was to be calculated at basic prices. अब ये सब समझ जाएगा आपको. GVA from different sectors was to be calculated at basic prices. Back series data corresponding to this change
back series data corresponding to this change was released by the NITI Aayog in November 2018. In November 2018. अब इसमें 2-3 चीजें मैं भूल गया हूं, ओके। वापस आउटपुट मेथड में जाइए, लिखिए आउटपुट मेथड में द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन while calculating the GDP. The following precautions need to be taken while calculating the GDP. Number 1, second-hand goods, illegal activities मतलब स्मगलिंग वगैरह, second hand goods, illegal activities and service provided by housewives is to be excluded. Second hand goods, illegal activities and services provided by housewives is to be excluded. Number 2, commission income, कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब आप बनाते हो और खुद ही यूज कर लेते हो। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अपना खुद का पावर प्लांट होता है, दे जनरेट पावर एंड दैट पावर इज यूज्ड इन देयर फैक्ट्रीज ओनली, नॉट सोल्ड आउटसाइड। नाउ बिकॉज इट्स नॉट सोल्ड आउटसाइड, वो कहीं चेन में तो आएगा नहीं, लेकिन दैट इज कॉल्ड कैप्टिव कंजम्पशन। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जो उस पावर प्लांट में मैन्युफैक्चर हुई है, जो फैक्ट्री के अंदर लोकेटेड है, उसका प्रोडक्शन भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कैप्टिव कंजम्पशन। सो कमीशन इनकम, कैप्टिव कंजम्पशन एंड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैज टू बी इंक्लूडेड। एंड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैज टू बी इंक्लूडेड। अब आप नेशनल इनकम लिख रहे थे, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, उसमें लिखिए इनकम मेथड ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनकम मेथड ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने जब इनकम मेथड लिखा था तो हमने फैक्टर इनकम्स पकड़े थे, जैसा हमने पकड़ा था कॉम्पनसेशन, ओके, हमने लिया था प्रॉफिट, देन वी हैड टेकन इंटरेस्ट एंड रेंट ऑन assets. ओके, CSO क्या करती है? It takes salary plus employer's contribution to social security. आपकी जब सैलरी आती है तो प्रोविडेंट फंड के लिए आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो तो आपके ओवरऑल सैलरी से कट के ही आती है और ओवरऑल सैलरी ली जाती है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर भी करीब 8.33% आई थिंक आपके सैलरी का कुछ परसेंट कंट्रीब्यूशन करके सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जमा करता है आपके बिहाफ के लिए, तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल कंपनसेशन इतना है। एक्चुअल कंपनसेशन वो नहीं जितनी आपको सैलरी मिली है। प्रॉफिट, अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? देयर आर मेनी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, तो जिनका रेगुलर रिटर्न फाइल वगैरह फिगर्स आते नहीं है, दैट इज व्हाई इन केस ऑफ प्रॉफिट इट टेक्स
मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग surpluses. That's what CSO calls it. Right? Interest की जगह it takes consumption of fixed assets. ये consumption of fixed assets क्या है? इसका एक आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. सपोज आपने मशीनरी खरीदी है ऑफ रुपीज 10 lakhs और इसकी लाइफ है 5 years. लाइफ कितनी है? 5 years. 5 साल के बाद ये मशीनरी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी. अब ये मशीनरी यूज करके, राइट, सपोज मैंने गुड्स बनाए 6 lakhs के, ओके, लेकिन वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए. इसमें इनपुट कॉस्ट 0 पकड़ लीजिए, ठीक है. तो ये 6 lakhs का जो वैल्यू एडिशन है, ये एक्चुअली 6 lakhs का वैल्यू एडिशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये 10 lakhs की मशीनरी वुड बी ओवर इन 5 years. ये मशीनरी की जो वैल्यू है, वो मशीनरी की वैल्यू में डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो डिस्ट्रक्शन आपको कंसीडर करना पड़ेगा. एंड दैट डिस्ट्रक्शन इज नोन एज डेप्रीसिएशन. ठीक है. तो 10 लाख की मशीन, वैल्यू लाइफ 5 years है, तो पर ईयर मशीन की वैल्यू कितनी यूज कर रहे हैं आप? 2 lakhs. तो इसमें से आप 2 lakhs माइनस कीजिए, तो ये है 4 lakhs विच इज नेट वैल्यू एडेड. रिमेंबर, दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डिप्रिसिएशन इज नेट वैल्यू एडेड. सिमिलरली यहां पर इंटरेस्ट की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिया जाता है, एंड रेंट की जगह, ये दोनों की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिया जाता है. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ गया? नो प्रॉब्लम. ओके. राइट. तो दिस गिव्स अस the gross value added according to the Central Statistical Organization. This is GVA at fixed cost. इसमें आप add taxes minus subsidies. Remember, ये taxes में which are not related to production. जैसे आप सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी जगह के हिसाब से है. आप उस जगह में जो फैक्ट्री लगाई है, आपने प्रोड्यूस कितना किया है, स्टैम्प ड्यूटी उसके भरोसे तो नहीं ली जाती. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टैक्स विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. आप ये सब करोगे तो आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस. इसमें आप प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड कर लीजिए, यही पिछली बार का कॉन्सेप्ट है. प्रोडक्ट सब्सिडीज आप माइनस कर लीजिए, तो यू गेट GVA एट करंट प्राइसेस. ओके. फिर GVA, रिमेंबर ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, एट करंट प्राइसेस बेस
year adjustment, you get GVA at constant prices. Clear? So this is how the government of India, the Central Statistical Organization, measures GVA using the income method. मैंने जैसा बोला था, एक्चुअल जीडीपी जो कैलकुलेट होता है उसमें एक सारे मेथड्स का मिक्सचर है, एंड आप मेथड कोई भी फॉलो करो, अल्टीमेटली लॉजिक ये है कि आपका फिगर उतना ही आना चाहिए. आप इनकम मेथड फॉलो करो, आप एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो करो, आप ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड फॉलो करो, आपका नेशनल इनकम उतना ही आना चाहिए. कभी कभी कुछ ऊपर ज्यादा होता है विच इज एडजस्टेड एज डिस्क्रिपेंसीज. आप अगर फिनमिन के वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारी फिगर्स आपको डिटेल में अच्छे से मिल जाएंगी. एक और कॉन्सेप्ट है, हमने लिखे जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी ऑब्लिक जीवीए डिफ्लेटर. This is a number which is used. This is a conversion factor which is used. Sorry, this is a conversion factor which is used to arrive at the real GDP from the nominal GDP. A conversion factor which is used to arrive at the real GDP from the nominal GDP. फॉर्मूला लिख लीजिए आप. Nominal GDP upon GDP deflator will give you the real GDP. ठीक है. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड में फर्क किसका है? डेप्रिसिएशन का. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी डिफरेंस किसका रहेगा? डेप्रिसिएशन का. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस रहेगा वो मैं बता चुका हूं. वही डिफरेंस ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में रहेगा. सिंपल. नेशनैलिटी और ज्योग्राफिकल बाउंड्री का फर्क. ओके. सो दीज आर some basic concepts relating to national income measurement in India. आप ये पूरा लेक्चर, आपने जो फॉर्मूले लिखे वो अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपका प्रिंटेड मैटर अच्छे से रिवाइज कीजिए, एंड इन केस ऑफ डाउट्स गेट बैक टू अस. ओके, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll carry this discussion forward. Thank you very much.